जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी की कृपा में कल हमने स्वादिष्ठान चक्र, राइट स्वादिष्ठान और लीवर के बारे में श्री माता जी के अमृतवाणी के जरिए क्लियरेंस किया। आज उसी सेशन को लेके कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2, जिसमें आज लीवर के बारे में श्री माता जी ने अलग अलग अमृतवाणी में लीवर का जो स्थान है हमारे राइट स्वादिष्ठान और बनता है कि चित्त का स्थान यहाँ पे है, और ये जब तक ठीक नहीं होता हमारा ध्यान की अवस्था और शरीर मन की अवस्था संतुलित नहीं रहती। ये लीवर का और एक आप स्पेलिंग देखोगे इंग्लिश में तो लिखा है LIVER। आर निकाल दिया तो सिर्फ रहता है LIVE। और श्री माता जी का एक अमृतवाणी में वाक्य है, वी लिव बाय लीवर, वी लिव बाय लीवर। तो मेडिकल साइंस के हिसाब से भी ये लीवर बहुत महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा ऑर्गन शरीर में है जो काफ़ी कार्य करता है। तो प्रथम हम इंग्लिश अमृतवाणी से लीवर के बारे में श्री माता जी ने जो अलग अलग अवयवों का संबंध और व्याधि का संबंध इसमें बताया है वो आत्मसात करते हैं। जय श्री माता जी। See, sickness comes to you, as I told you, through our centers getting exhausted. As this is one center, all right, on the left side, left sympathetic, the right sympathetic, and they join together, this is the center now. So we are using the energy of the center that is limited for our purpose, anything. Supposing, I'll give an example of a very good example of one Swadhisthana chakra. Is the center, in the second center, which looks after the aortic plexus in the medical terminology. But it's not complete, I mean, it's one of the parts. Now, the work of the Swadhisthana chakra, according to Sahaja Yoga, which has worked, of course, wonders with this theory, that it gives energy for the replacement of the brain cells. Because we never think about it. We are using the brain all the time. We don't think how it is replaced. Even in the medical science, they don't think about it. So one of the works it has got. It moves here. And also it has to look after your liver. It has to look after your pancreas. It has to look after spleen. It has to look after your kidneys. It has to also look after the lower part of your large intestines. All right? Now, but all the time a person is thinking. These days everybody thinks too much and very futuristic. As a result, it cannot pay attention to all other things. So what happens? The first thing is affected is the liver. Now liver gets all the heat from the whole body and eliminates it. It's poison from the body, you can say, eliminates it into the blood circulation. It goes into the blood. Now when, you see, liver is not attended to or doesn't get sufficient energy, it starts working very hard. So it becomes overactive liver and this heat cannot be removed. So the heat starts rising upward and downwards. As a result, your what you call the lungs are made of, as you know, they are made like a sponge. So it becomes coagulated and you develop asthma. We cure asthma through liver, curable. Then it descends down. When it descends down, it affects your kidneys. By that you get high blood pressure. Also, the another thing you get is constipation. Then your pancreas is neglected. When pancreas is neglected, you get diabetes. Only the people who are thinking, sitting, planning for future get diabetes, never a villager. In India, if I go to a village, they'll say you have to put sugar as much that the spoon must stand at right angles. They take so much sugar. Nobody gets diabetes because they earn in the morning, nicely go home and sleep off. Here we think and think and think of the future. So the neglect of the pancreas gives you diabetes. Now we have many people who have cured of diabetes also. Then the third one is the worst.
is the spleen. That the spleen is like a, we say rhythm, gives the rhythm. It's a speedometer in us. And supposing you are eating the food and suddenly you have to run, then you get a pain because it has to produce red blood corpuscles. But if you are always in an emergency in modern times as you are, first of all you read the newspaper, you are under shock. Because newspaper must shock you. So then another shock, then another shock. Then in the traffic you get a shock. So this poor spleen doesn't know how to behave in this crazy world. And it becomes very crazy and vulnerable. And with the slightest shock, it can get blood cancer. I must tell you that we have cured really blood cancer patients. Absolutely cured, completely cured, without any medicine or anything. Absolutely cured. We have certificates and everything about them. And surprisingly, all of them were architects. This is one. Then another thing, as I told you, it affects the kidneys and it affects also the lower intestines. So only one center, if you use it too much for one purpose, can give you all these troubles. And ultimately the heat might rise to your heart and you might have a massive heart attack. Especially if young people, if they are drinking too much, if they are playing tennis or of a very, any game which is like football or tennis, drinking too much and thinking too much, they might get a massive heart attack. And die very young, at a very young age, and it's absolutely fatal. If you get this attack at a young age, it's fatal. You cannot save them. The other way around, if you have inactive organs also, you can have inactive, also due to that also you get troubles. So when you treat somebody on its roots, it's very easy to solve the problem. See, supposing you have to treat a tree and you start treating all the leaves, it's very difficult. But if you can go to the roots, it's so easy. Simple. जय श्री माता जी। ये एक ही सेंटर ऐसा है कि एक खराब होने के कारण 10 परेशानियां खड़ा कर सकता है। इसीलिए अभी जो हमारे अंदर जो बॉडी हीट गर्मी महसूस हो जाती है, वो सारी गर्मी लीवर में जम जाती है और लीवर की कैपेसिटी जब ख़त्म हो जाती है, फिर वो गर्मी वहाँ से निकल के समझो मूलाधार में गई तो पाइल्स, फिशर, फिशुला, ये परेशानी तैयार हो जाती। वही हीट स्वादिष्टान में चली गई, पैंक्रिया में गई तो डायबिटीज़ हो जाता है, किडनी में चली गई तो किडनी के प्रॉब्लम और वहाँ से ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम, स्प्लीन में चली गई जिसको स्पीडोमीटर बोला है, ज़्यादा सोचने के कारण वो बहुत दौड़ता है और फिर ब्लड कैंसर तक भी जा सकता है। बड़े आंत्र में हीट चली गई तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। वही हीट थोड़ी ऊपर आ गई, राइट हार्ट में आ गई तो हमारे जो 2 लंग्स है, फेफड़े है, जो सॉफ्ट है, स्पॉन्ज जैसे है, उसमें हीट जम जाती है, वो कड़क हो जाते हैं तो अस्थमा हो गया। वही हीट बढ़ते 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 ऊपर चढ़ के लेफ्ट साइड को गई, हार्ट तक गई तो हार्ट अटैक भी आ जाता है। तो एक ही सेंटर को ठीक करो तो मैक्सिमम बेनिफिट हमको मिलेगा। तो दूसरा अमृतवाणी हम हिंदी में सुनेंगे, जिसमें और थोड़ा लीवर के बारे में श्री माता जी ने बताया है, वो हम आत्मसात करते हैं और उसके बाद में कुछ लीवर के मंत्र लेंगे और लीवर को क्लियरेंस करेंगे। लोगों को लीवर की बीमारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सूर्य नाड़ी बहुत चल जाने से मनुष्य को सूर्य की जहां बहुत और ताप हो और ऊपर से सूर्य नाड़ी बहुत चल जाए तो जरूरी है कि बेचारे इस स्वादिष्टान चक्र को इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि वो जो एक लीवर है उससे वो देख नहीं पाता, इसलिए यहाँ लोगों को लीवर की बीमारी हो जाती। फिर डॉक्टरों ने उसका नाम बनाया माइग्रेन। माइग्रेन कोई चीज है नहीं, सब बेकार की बात है। इसमें सिर्फ आपका लीवर खराब होने से माइग्रेन होता है, या आप किसी भूत से पीड़ित हो तो भी हो सकता है। ये तो लेफ्ट साइड बात हुई, इस राइट साइड की बात में कर रहे हैं। तो इस तरह से आपकी शारीरिक तकलीफें इसलिए ठीक हो जाती हैं कि आप निर्विचार हो जाते हैं। सहज योग में आप विचार बहुत कम करते हैं, विचारों से परे आप रहते हैं। तो जब प्रेरणा तक
प्रेरणात्मक जो विचार आता है, उस विचार से ही आप बोलते हैं और उसी विचार पे आप चलते हैं। विचार एकदम जैसे कि रुक जाते हैं, एक विचार उठता है गिर जाता है, दूसरा विचार उठता है गिर जाता है, इसके बीच में जो जगह है उसे विलंब कहते हैं। ये विलंब जो है ये वर्तमान है, आज अभी इस वक्त इस क्षण ये जगह है। हम या तो आगे की सोचते हैं पीछे की सोचते हैं, तो इसी के कमान पर इसी के कष्ट पे हम कूदते रहते हैं। हमारे पूरे समय मस्तिष्क चलते रहता है, खोपड़ी हमेशा घूमती रहती है और उस वक्त बेचारा स्वादिष्ठान मेहनत करके और इस मेद की पूर्ति करने के लिए हर समय तत्पर हो जाता है। फिर आपको डायबिटीज होता है, डायबिटीज भी इसी से होता है कि आप पूरी अपनी शक्ति जो है स्वादिष्ठान की अपने सोचने में लगा देते हैं। देहात में मुझे पता नहीं यहाँ है या नहीं, पर हमारे महाराष्ट्र में तो लोग इतनी चीनी खाते हैं देहात में कि कहते हैं कि चम्मच खड़ा हो जाना चाहिए चीनी में, तब कहीं चीनी पड़ी। वो तो क्या ये वो पीने की चाय या दूध है, इतनी चीनी खाते किसी को डायबिटीज नहीं होता। देहात में किसी को डायबिटीज होता ही नहीं, शहर वालों को ही क्यों होता है। और जो टेबल पे बैठ करके रोज प्लानिंग बनाते रहते हैं और सबका कबाड़ा करते हैं, उनको क्यों होता है? उनको ये बीमारी क्यों होती है? वजह ये कि आप जरूरत से ज्यादा सोचते, इतने सोचने की कोई जरूरत नहीं। पर अगर कोई कहे कि मत सोचो तो हो ही नहीं सकता। एक साहब स्विट्जरलैंड में आए हमारे पास, डॉक्टर साहब नहीं बैरिस्टर थे, अब तो वो सहयोग में आ गए। वो एक अल्जीरिया के बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, वो स्विट्जरलैंड में आए और मुझे कहते हैं कि माँ चाहे मेरी गर्दन काट दो, चाहे मेरा सर फोड़ दो, पर ये विचार ठहराओ, मैं पागल हो जाऊंगा। आज पार होकर के बहुत बड़े आदमी हो गए, पर उनका सारा कुछ डायबिटीज वगैरह सब खत्म। उसके बाद आप हाई ब्लड प्रेशर भी इसी से होता है, क्योंकि किडनी निगलेक्ट हो गई, किडनी को आपने देखा नहीं, उसको संजोया नहीं, तो वो भी आपको बीमारियां होंगी। अनेक बीमारियां इसलिए होती है। और सहयोग्य से जबकि कुंडलिनी आपके नाभि चक्र को प्लावित करती है तो एकदम सारी ये बीमारियां भाग जाती और आपका चित्त बीच में स्थिर हो जाता है। जब आपके अंदर धर्म शक्ति जागृत हो जाती है, तभी फिर हम कहते हैं कि लक्ष्मी तत्व से आप महालक्ष्मी तत्व में उतरते हैं। जैसे कि जहां जहां लोग ऐसे वाले हो जाते सोचने के कारण हमारा चित्त स्थिर नहीं होता है और इसके कारण ये लीवर हीट बढ़ती है, ब्लड प्रेशर, किडनी प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाते हैं और डायबिटीज भी। तो अभी हम कुछ लीवर के मंत्र लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जो लीवर की फोटो आपको दिख रही है, अपना राइट हैंड राइट लीवर पे रखेंगे, राइट साइड के नाभि चक्र के नीचे और स्वादिष्ठान और नाभि के बीच में, जहाँ पे हमारी फसलियाँ यानी रिब्स खत्म हो जाते हैं, वहाँ पे लीवर का स्थान है। जैसे हम वाइब्रेशन चेक करते हैं वैसे आप 1 इंच आपका हाथ दूर लेके जाइए और लीवर और आपके हाथ के बीच में आपको गरम महसूस होता है या गुनगुना या ठंडा, ये जरा देखिए। अब उसी राइट हैंड से धीरे धीरे क्लॉकवाइज हाथ से गोल घुमाना शुरू करिए और वहां की गर्मी को पकड़ के उसको निकाल दीजिए, साइड में फेंक दीजिए। वापिस ये प्रक्रिया करते रहिए। वापिस डाल दीजिए। अब वापिस हाथ से चेक करिए, लीवर और आपका हाथ के बीच में आपको पहले से ठंडा वाइब्रेशंस बढ़ रहे हैं या नहीं। अब धीरे से राइट हैंड गोदी में रखें, आँख बंद करें और चित्त की ओर देखिए।
जय श्री माता जी। धीरे से आँख खोलिए। अभी अपना लेफ्ट हैंड हम लीवर पे रखेंगे, यानी लेफ्ट हैंड राइट साइड पे रखेंगे, राइट नाभि और स्वादिष्ठान के वहाँ पे। यहाँ पे हम पहला मंत्र लेंगे, पूरा मंत्र लेंगे। पहला, श्री निर्मल चित्त साक्षात। त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल चित्त साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जो स्क्रीन पे आपको फोटो दिख रहा है श्री माता जी का, श्री माता जी के पीछे जो हिमालय है उसकी ओर निर्विचार होके देखिए। अभी आगे के मंत्र हम ओम तमेव साक्षात मंत्र नमो नमः ऐसा लेंगे। श्री हिमालय देवता। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हिमालय देवता नमो नमः। श्री चंद्रमा साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चंद्रमा नमो नमः। श्री चित शक्ति साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चित शक्ति नमो नमः। श्री मुकुटेश्वरी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री मुकुटेश्वरी नमो नमः। श्री सर्वतापहारिणी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सर्वतापहारिणी नमो नमः। श्री विचार शैथिल्य। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विचार शैतल्य नमो नमः। आखिर का मंत्र पूरा लेंगे। श्री राज राजेश्वरी साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राजराजेश्वरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। इस अवस्था में हम ध्यान करते हैं 1 मिनट।
जय श्री माता जी। यही राइट साइड यानी सूर्य नाड़ी ज़्यादा हीट होने के कारण हमारे अंदर गुस्सा, क्रोध निर्माण होता है। तो इसको राइट साइड को और गुस्से को कैसे काबू में रखना है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, ये अभी इस छोटी सी अमृतवाणी में श्री माता जी हमें बताने वाली है, वो हम आत्मसात करते हैं। श्री माता जी, क्रोध को जीतने का उपाय बताएं। क्रोध को क्रोध एंगर क्रोध सत्य बात के लिए ही आता है। बहुत उपाय किया, कोई असर नहीं। आप ही के विमुख से ये बताएं। क्रोध जो आता है वो लीवर से आता है, सत्य वत्य के लिए नहीं आता। माने हम हमेशा सही है और दूसरे लोग गलत है, ये सोच लेने से हमेशा क्रोध आता। अब वो क्रोध करते करते जमते 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 बमगोला बन जाता है, और जैसे ही कोई आया बात में कुछ नहीं, उससे बड़ा जाता है और हम उसको फिर जस्टिफाई करते हैं, इससे मुझे क्रोध आया था, ये सही बात थी। क्रोध आना चाहिए, लेकिन आपके काबू में। आप घोड़े पे सवार हैं, घोड़ा आपके काबू में होना, लेकिन आप तो घोड़े के बहकाव में चले जाते, तो इसको मैंने क्रोध माना। कि लीवर आता है, उसका इलाज ये है कि थोड़ा बर्फ लेके लीवर पे रोज रखिए, उससे बहुत लाभ हो जाएगा। एक तो गर्मी कम हो जाएगी, तलवे में बर्फ रगड़ी, यहाँ यहाँ पर बर्फ हो गई लीवर से, और राइट हैंड फोटो की तरफ, लेफ्ट हैंड ऐसे, और बर्फ से पानी बचे, इसे ठंडक आ जाएगी। ठंडक आने से क्रोध कम। ये सब लीवर की खराबी से होता है। जिस आदमी का लीवर खराब होता है, उसके पास जब जाना हो तो एक साथ में डंडा लेके जाना, और ऐसा आदमी जब सो रहा हो तो उसको जगाना नहीं, कभी नहीं, उसको 2-4 मार देता। तो जब लीवर खराब होता है तो आदमी को बड़ा क्रोध है। कोई लोग हैं वो बहुत बड़बड़ाते हैं, बोल करते हैं। कोई लोग हैं वो बोलते नहीं, और जब बोलते हैं तो बिल्कुल गरजते। इसे बीचों बीच चलना चाहिए, जब बोलना है तब बोल दिया, जब नहीं चलेगा। तो क्रोध का इलाज लीवर से होता है। लीवर को ठीक करने के लिए एक मेडिसिन की कैसी वो लीजिए, इससे गर्मी होती है, और दूसरा उससे बर्फ रखे, इससे आपकी सर्दी ठीक हो जाएगी, बुखार ठीक हो जाएगा। बहुत से लोग बनियान नहीं पहनते, आपको पता नहीं, सहयोग में कंपल्सन है कि बनियान पहने। इसको में 5 चीजों का कंपल्सन है, सहयोग में सिर्फ बनियान हर एक आदमी को पहनना, तो उससे सर्दी पकड़ जाती है सीने में, उससे गर्मी हो जाती है, उससे भी लीवर खराब होता है। शराब से लीवर खराब हो जाता है। और सबसे ज्यादा लीवर खराब होता है सोच से, जो आगे के आदमी सोचते हैं, अभी जाना है, यहाँ से जाएंगे तो वहां से बस लेंगे। जय श्री माता जी। तो ये लीवर हीट को कम करने के लिए गर्मी कम होनी ज़रूरी है, और इसके लिए श्री माता जी ने लीवर पे आइस पैक रखने के लिए बोला है, जिसके बारे में हम लास्ट में देखने वाले हैं। और बर्फ़ का मीठ नमक पानी भी करने के लिए बोला है। और साथ में ही यानी लीवर की हीट कम करने के लिए हम जो वस्त्र पहनते हैं, उसके अंदर भी जो हम अंतर वस्त्र होता है वो भी पहनने के लिए बोला है। अभी आगे हम चलते हैं। जैसे ये लीवर हीट बढ़ती है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। जो भी हाइपर वाले प्रॉब्लम से वो राइट साइडेड है, और हाइपो वाले प्रॉब्लम से वो लेफ्ट साइडेड है। यानी कि राइट साइडेड के हाई ब्लड प्रेशर, शुगर बढ़ना, थायराइड बढ़ना, और लेफ्ट साइड के कौन से हैं, बीपी कम होना, लो बीपी, थायराइड कम होना वगैरह वगैरह। तो अभी हम ये जो ब्लड प्रेशर है, इसमें जो हमारे राइट साइड की हीट बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई और लेफ्ट में जाके बैठ गई, तो क्या करना पड़ेगा, ये श्री माता जी ने अभी इसमें बताया है। तो हम श्री माता जी के साथ साथ वो प्रैक्टिकल करेंगे, जिसमें हमको हमारी लेफ्ट साइड को उठाना है और राइट साइड में लाके छोड़ना है। अमृतवाणी से देखते हैं। The other problem that has come today is that somebody is suffering from high blood pressure. It's very easy to cure high blood pressure.
how you are to be cured and all that is very simple. The basic idea is that you are in imbalance, that your Pingala Nadi is working too much. So what you have to do is to take my photograph and put your left hand, put it to the right 108 times. And you can put your feet in the water with little salt and throw the water, flush it out. It's very simple. Left side is to be raised and right side you have to get the grace. Right side like this, the grace, by which you nourish your right side, which is being too much used. All those people who are right-sided get high blood pressure, who are left-sided get low blood pressure. There are two types of people, left and right hand. One are lethargic organs they have, others have very active. I told this in the beginning. Any other question, please? Please write it down. Most of you people who are supposed to be in charge of Delhi government or the government of India, you are all like Govardhan Dharis, you see, standing with one finger. You think if I remove the finger, the whole government is going to topple down. All such people are right-sided. So what you have to do, all of you have to take the left side and put it to the right. 108 times, then reduce it to 51 times, then to 21 times, then to 7 times. And you'll find your blood pressures, everything will go away. जय श्री माता जी। अभी आगे चलते हैं। अभी गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है और सूरज की गर्मी बहुत बढ़ रही है और सहयोगियों ने गर्मी के साथ साथ लीवर हीट के साथ साथ खुद को संरक्षण कैसे करें, हाउ टू कीप योर बॉडी कूल इन समर, इसके बारे में श्री माता जी ने इस आगे की अमृतवाणी में बताया है, उसे हम आत्मसात करते हैं। To keep the body cool in summer, first of all, you have to do is to take some ice and rub it on your liver. Keep the liver cool. Don't think too much. Don't take hot things. Like in the summertime, so many people eat those watermelons and things like that. They should be cooled down properly. Like even mangoes in India must be cooled down and then taken. All such fruit should be cooled down and then eaten. Some people eat the mangoes just from the tree. That's very wrong. You have to cool it down for 24 hours and then eat it. This we knew, all of us. But in modern times, I don't know if people don't know. All these things add up. Then reduce on meats and fish especially. You should not eat fish in the summertime at all. First of all, it is spoiled, something wrong with it, or else it has phosphorus which ignites. So avoid all these things, eat things which are cool. Now especially for India is very easy because we have got something called gulkand, which is made out of rose petals, which is a very good thing for cooling the liver. Then cardamom, then the candy sugar itself, all these things will cool down your liver and you will feel very good. The change in your diet is very important during the summertime. A Sahaja should never go in the sun. Take it from me. Never go in the sun, because this brain requires complete quietude and no sun activity is needed. You should not even, when you sleep, there should not be even a ray of sun. Even when I sleep, I want complete darkness. Even a slightest ray of light is coming, which people know very well, I cannot sleep because I must act. So the reaction to this light is so much in me. Maybe that I am very sensitive to all the elements. But what about you? You must avoid the sun's light as much as you can when you sleep, and also should not sit in the sun for such a long time. Of course, sitting in the sun helps you because it gives you vitamin D, by which vitamin D, if you take it, you build up your bones better. But now I think your bones are quite built. There's no need to build your bones anymore. But now by God's grace, you are getting soluble calciums which you can eat, and you can also have vitamin D and A if you want to. What is the need of scorching this head? Now, if you sit in the sun, then either you will have a bald head
or you will have a jungle in that. One of the two things, depending on the personality as you are. Because your brain cannot bear it, your skin cannot bear it. After all, we are not jungle people, are we? But you ask any jungle person also, he never sits in the sun. I just don't understand. You must know that today we have the work of the Sahasrara. And the Sahasrara is the brain. Oh, hemorrhoids, is it a Muladhara problem? Hemorrhoids. Right side Muladhara. Right side. For that, you have to keep yourself cool. Again, get the cooling effects, all the cooling things to be done. And also, a very good thing is to eat the black dried grapes. What do you call that? Raisins. Black raisins. Soak them in the night with some orange juice and eat them. Soak them in the morning, eat them in the night before sleeping. That will cool down. That's very, very cool. जय श्री माता जी। इस अमृतवाणी में श्री माता जी ने इस गर्मी में शरीर को ठंडा रखने का बहुत महत्व बताया है और हमारा सहस्रार हमेशा ढकना ज़रूरी है और काफ़ी पदार्थ बताया है क्या खाने चाहिए या क्या नहीं खाने चाहिए लीवर के लिए और गर्मी के लिए, जो हम इस सेशन के आखिरी में आपको विद पिक्चर दिखाने वाले हैं। तो ये हो गई। आगे का और एक हिंदी अमृतवाणी है जो नाभि के कारण जो हमारे को पित्त की शिकायत होती है और क्या क्या होता है उसके रेफरेंसेस इसमें बताए हैं और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो भी बताया, वो भी आत्मसात करते हैं। अब दूसरा यहाँ मैं देखती हूँ कि लोगों को पित्त का शिकायत बहुत है, पित्त बहुत होता है, हमेशा उबासी आती है। ऐसे जो लोग हैं जिनको पित्त बहुत होता है उनके लिए चाहिए कि एक कोकम करके फल मिलता है, उसका जूस बना करके और उसमें नमक चीनी डाल के उसको पिए। ऐसे लोगों को बहुत चीनी खानी चाहिए और ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर मैं चीनी वाइब्रेट करके जाऊँगी, तो आप लोग वो चीनी खाएँ, उससे फ़ायदा होगा। जो वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन आती है, यहाँ बर्निंग होता है, हार्ट बर्निंग होता है, तो ऐसे लोगों को तला खाना नहीं खाना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स कम करने चाहिए। इस तरह से आप अपनी पित्त की भी शिकायत ठीक कर सकते हैं। जिसको पित्त बहुत होता है वो भी ठीक कर सकता है। और जाड़े में जब जाड़ा बहुत पड़ता है उस वक्त में आप सौंठ और चीनी खा सकते हैं। वैसे भी ऐसे लोगों के लिए गन्ने का रस बहुत फायदे का है, गन्ने का रस लिया जाए। गन्ने के रस से आपका जो लीवर है वो ठीक रहेगा और आपको काफ़ी ताजगी मिलेगी। क्योंकि जब लीवर खराब होता है तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सेला हो जाता है, कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती। लीवर तो कहते हैं ना, लाइफ के लिए लीवर बहुत ज़रूरी है। ये दो बीमारियां मैंने बहुत देखी हुई हैं और इस पर मैंने बात की। और कोई बीमारी के बारे में पूछना हो तो पूछिए। अस्थमा होता है लीवर से। लीवर को आप अगर हमेशा बर्फ़ रखें वैसे भी तो आपका लीवर ठंडा हो जाएगा। अस्थमा को ठीक करने के लीवर पे आप हमेशा थोड़ा सा बर्फ़ रखें और बर्फ़ से आप अपने जो पीठ पे राइट साइड राइट हार्ट है वहाँ पर भी आप थोड़ा बर्फ़ रखें। खाना नहीं चाहिए बर्फ़, जब हम खाते हैं तो गर्मी करता है, पर बाहर से लगाना चाहिए तो वो गर्मी को खींचता है, उससे आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा। और उसका मंत्र है श्री राम। श्री राम का मंत्र कहने से वो ठीक हो सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा आगे की सोचते हैं कि अभी जाने का है तो मोटर रखो, तो फलाना करो, तो ठिकाना करो, तो ऐसा करने का है। औरतें खास करके हमेशा सोचती हैं कि कल क्या खाना बनाए, परसों क्या खाना बनाए, तो ये क्या लाए, तो क्या लाए। ये सब सोचने से बेकार है। जो सब्जी बाजार में लाए मिलेगी वही तो खाओगे। ये तो अजीब बातें हैं कि आज अगर हमने सोच लिया कि चलो हम आज परमल खाएंगे और बाजार में परमल है नहीं तो क्या खाएंगे परमल। औरतें इस तरह की बहुत बातें सोचती रहती हैं हर समय, बेकार की बात। तो ये छोड़ देना चाहिए। और दूसरी ये कि किचन ऐसा होना चाहिए, घर ऐसा होना चाहिए, फलाना ऐसा होना चाहिए। फिर हस्बैंड ने अगर इधर से इधर पैर रख दिया तो कह रहे ऐसे नहीं करो, देखो वो खराब हो रही है।
घर में आदमी लोग आते हैं, बच्चे आते हैं कि ये घर में एक सुंदर सा नीट नेस्ट बना हुआ है, यहाँ के आराम करेंगे। थोड़ा सा खराब हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, उसमें क्या बात है। हर समय उनकी जान को लगे रहना, ये ठीक से बैठो, वो रखो। अगर एक चीज टूट गई तो हो गया, हाय तो बाप मच जाती है। घर में 4 चीज टूटेंगी, घर में नहीं टूटेंगे तो और कहाँ टूटने वाली। जो औरतें बहुत ज्यादा हर चीज में इंसिस्टेंस लगाती हैं, उनका बदन ड्राई अप हो जाता है, फिर उनको ये सब शिकायतें शुरू हो। तो एकदम रिलैक्स रहना चाहिए, कोई हर्जा नहीं। थोड़ा सा घर खराब हो गया तो आप ठीक करिए, उसमें क्या है। और वो उनको लगता है ना मेरे को मेहनत पड़ेगी, तो इसलिए पहले से चिल्लाना शुरू करते हैं, और चिल्लाने में ज्यादा मेहनत होती है बनिस्बत ठीक करने की। आदमी लोगों को भी जो अपनी औरतों की नीक में हमेशा निकाल के रखे, वो औरत लोग को जरा ज्यादा ही टाइम लगता है तैयार होने में नेचुरली, क्योंकि आदमी लोग को क्या है, आपने अच्छे ड्रेस बना लिया है अंग्रेजों का, फटाक से पहन लिए चल दी। अब औरत लोग को तो साड़ी ठीक से पहननी है। अभी मेरे को बहुत कम टाइम लगता है, तो भी अब साड़ी है, अगर ऊंची नीची है तो वो भी बोलेंगे तुम साड़ी ऊंची नीची पहने, तुमने ये साड़ी क्यों पहनी और फलाना। आपको क्या करने का है, औरत के हर एक नीक में निकालते रहना कि तुम ऐसी क्यों बैठी थी, तुमने ये क्यों बोला, तो तुम वहाँ क्यों गई, तो यहाँ क्यों नहीं आई, तो ऐसा क्यों नहीं किया। उससे भी खोपड़ी अपनी खराब करते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप अपने को देखो, उसको अपने को देखने दो। सहयोग में कोई किसी को करेक्शन करने की जरूरत नहीं होती, और जो करेक्शन पे लग जाते हैं आदमी लोग, तो उनको फिर कोई अंत ही नहीं रहता। उनको लगता है उनको राइट है औरत को करेक्ट करने, हर चीज में उनको, फिर औरत उनको करेक्ट करती रहती है। ऐसे ही चलते रहता है। झगड़े की बात अपने सहयोग में नहीं है। सहयोग में 2 पहिए हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट का पहिया राइट में नहीं आ सकता, राइट का लेफ्ट में नहीं आ सकता। लेफ्ट को लेफ्ट में रहना चाहिए, राइट का राइट में, दोनों इक्वल है और सिमिलर नहीं। तो औरत को जबरदस्ती पना नहीं करना चाहिए, ना आदमी को करना चाहिए। आपस में समझदारी से रहना चाहिए। औरत जहाँ है अपनी जगह ठीक है, और आदमी जहाँ है वो अपनी जगह ठीक है। अब नाक को अगर आप आँख की जगह रखिए और आँख को नाक की जगह, तो दोनों काम से गए। जय श्री माता जी। इस अमृतवाणी में भी काफ़ी खान पान के पदार्थ जो लीवर के लिए अच्छे हैं वो माँ ने बताए हैं, जो हम वापस इस सेशन के आखिरी में सारे के सारे लीवर डाइट के पदार्थ देखने वाले हैं, क्या खाना है या क्या नहीं खाना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो बात लीवर हीट के कारण होती है वो यानी नींद नहीं आना। हमेशा चंचलता के कारण नींद नहीं आती है, शांति नहीं आती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो भी इस अमृतवाणी में माँ ने बताया इंग्लिश में। आगे की अमृतवाणी 1 मिनट की है। इस अमृतवाणी में 2 चीज़ प्रैक्टिकल करने के लिए भी बोला है माँ ने, वो भी हम करने वाले हैं। The cause for insomnia and how can it be eradicated? या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्था is Nidra the deity and how is she to be appeased? In what? Nidra. Insomnia loss of. The question is about insomnia and what are the deities involved as far as the Nidra is concerned. Ya Devi Sarvabhuteshu Nidra Rupena Samstita. She is the one who gives you sleep. Is the left side. Is the Mahakali. That one gives you a sleep. And to get to her, you must raise your Mahakali Tattva. So all those people who have insomnia business should raise the left side and put it to the right. Try about 108 times first of all. Then you have to do some deep breathing. In deep breathing, you go to your left side more. And with deep breathing, you relax and then you put your attention to Sahasrara and sleep off. But insomnia is absolutely curable in Sahaja Yoga if you know how to put left to the right. After that, you should also clear out your Agya Chakra. Like this, if you turn your Agya Chakra, you can do it, or ask some Sahaja Yogi to take turn your Agya Chakra or put your hand on the Agya Chakra. But the problem is, if you ask any other Sahaja Yogi, he might get insomnia. So best thing is you use my photograph and try to turn your Agya Chakra like this. Also you can use the kumkum to put there, which will make you sleepy. And if you try to sleep in complete darkness. Never try to sleep when there is any streak of light coming in the room. Because as long as Surya is there, your Agya Chakra takes over. And when the Surya is there, that light makes you feel very active, overactive sometimes, and you cannot sleep. And this insomnia is absolutely curable. You don't take any medicines or anything for that. Another thing, taking tea like this in the night.
you might get insomnia, not me, but you might get. जय श्री माता जी। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी राइट साइड की परेशानी है उसके लिए हमको लेफ्ट को उठा के राइट में डालना है। और अंदर से शांति आने के लिए हमारा ये जो आज्ञा चक्र है, इसके अंदर जो ये दो आँखें हैं ये हमेशा दौड़ते रहते हैं, इसीलिए आँख को भी स्थिर करना ज़रूरी होता है। आँख का और लीवर का बहुत नज़दीक का संबंध है, इसीलिए लीवर को जब पीलिया यानी जॉन्डिस होता है तो आँख पीली पड़ती है। ये भी रेफरेंस माँ ने बताया है। तो इसीलिए हमको आज्ञा चक्र को शांत करना जरूरी है। इसीलिए सोते समय भी हमको लाइट पूरा बंद करके पूरे अंधेरे में सोना चाहिए। थोड़ा भी प्रकाश आँख पे या आज्ञा पे आ गया तो चित्त दौड़ना शुरू कर देता है। तो इसमें जो 2 कृति मैंने बताई थी उसमें की सबसे पहली कृति है लंबी सांस अंदर लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। ऐसे हम 3 बार करते हैं। एक बार करके देखिए दोनों हाथों पे और तालू पे ध्यान देते हुए लंबी सांस खींचिए, धीरे धीरे लंबा छोड़ दीजिए। वापिस एक बार छोड़ दीजिए, वापिस एक बार छोड़ दीजिए। अब आँख बंद करके तालू और दोनों हाथों पे ध्यान दीजिए। जय श्री माता जी। और एक चीज़ माँ ने बताइए, आपके राइट हैंड के आज्ञा चक्र की उंगली से आपके कुमकुम पे यानी आज्ञा चक्र पे दबाइए और धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करिए। दबा के घुमाना है। तो इससे भी आपका आज्ञा चक्र शांत हो जाता है, विचार शांत हो जाते हैं और ध्यान भी अच्छा हो जाता है और रात को नींद भी शांति से आ जाती है। धीरे से हाथ नीचे लेते हैं। अभी ये जो लीवर की और एक अमृत, इस अमृतवाणी में ये भी बताया कि चाय और कॉफ़ी ज़्यादा नहीं लेना है शाम को 5 बजे के बाद। उसके भी अमृतवाणी के रेफरेंसेस है। तो अभी हम और एक लास्ट अमृतवाणी देखते हैं जो मराठी में है और उसमें भी लीवर और कुछ खान पान के बारे में बताया है और लास्ट में हम सारी खान पान की लिस्ट देखने वाले हैं। आता एक आणखी गोष्ट अशी असते की जरा ट्रीटमेंटच्या गोष्टी ज्या आहेत हां तर ते तुम्ही जरा सांगा. पण एक म्हणजे मला इतके जे वाटलं ते लिव्हर फार आहे स्वतः. तर लिव्हर कसं नीट करायचं, ते लिव्हरसाठी काय करायला पाहिजे ते थोडक्यात मी सांगते. कळत लोकांना म्हणजे राईट नाभी चक्रावर जर पकड आली तर लिव्हर बहुतेक राईटला म्हणजे इथे लिव्हर असतं आपल्या बरगडांच्या खाली हे लिव्हर असतं. आणि लिव्हरचं महत्व सगळ्यात मुख्य हे आहे की जे काही विषाक्त आपल्यामध्ये जातं त्या सगळ्यांचं चयन करून ते लिव्हर रक्तामध्ये होतं आणि ते जर चयन झालं नाही तर ते लिव्हरमध्ये एकत्र होऊन अति भयंकर गरमी त्याच्यात एकत्र होते. आता एकतर ह्याला दोष कशाने येतात बहुतेक लिव्हरला, लहानपणीच मुलांना जेवताना काहीतरी भारी खायला द्यायचं म्हणजे तूप, तेल, शेंगदाणे, फारच शेंगदाण्याचं तेल सुद्धा पोषक नसतं. तिळाचं तेल खायला सुरुवात केली पाहिजे सहजोगाने. आता आपल्याला माहित असेल गुजराती लोकांमध्ये एक नवीन रोग निघालेला म्हणजे ते पांढरे अशा अंगावरती येतात ते चट्टे, काय म्हणतात त्याला तुम्ही, पांढरं कोड. हा हो, ते सगळं लिव्हरमुळे होतं. सगळे जेवढे स्किन डिजीजेस आहेत ते सगळे लिव्हरमुळे होतात, सगळे स्किन डिजीजेस. तेव्हा आणखीन एक नर्वसनेसही होतो, पण स्किन डिजीजेस बहुतेक म्हणजे 99% जे असतात ते लिव्हरमुळे होतात. तेव्हा लिव्हर हे फार जपायला पाहिजे. लिव्हर म्हणजे जोपर्यंत लाईफ ते लिव्हर आहे असं म्हणतात. टू लिव्ह बाय युअर लिव्हर. हे आपल्या उजव्या बाजूला ज्याला आपण यकृत म्हणतो ते आहे.
ते खराब होण्याचं कारण म्हणजे लहानपणी मुलांना खायला देताना आपण अशा वस्तू देतो ज्या पाचक होत नाहीत लिव्हरला, आणि त्या म्हणजे तूप, तेल किंवा दूध ज्याच्यामध्ये फार साय वगैरे असते अशी लहान मुलांना देऊ नये. 12 वर्षाचे होईस्तोवर तरी मुलांना ह्या गोष्टी अगदी वर्ज्य ठेवा. साय काढून दूध द्यावं, साईचं दूध देऊ नये. श्रीखंड वगैरे अशा फार त्याच्यामध्ये फार साय असेल किंवा त्याच्यामध्ये फार तूप असेल, असे तेलाचे तळलेले पदार्थ वगैरे आपल्या इकडे फार पद्धत आहे, हे पदार्थ लहान मुलांना देऊ नये. आणि त्याला अँटीडोट म्हणजे चणे हे फार चांगलं. प्रोटीन, कोणतंही प्रोटीन असलं ते लिव्हरला चांगलं. पण मासळी वगैरे हे जे पदार्थ असतात हे फार गरम करतात लिव्हरला, तेव्हा ते पोषक नसतात. तेव्हा प्रोटीन मध्ये त्यात सुद्धा आता जसं तुरीची डाळ आहे फार वाईट, मुगाची डाळ चांगली असते. लहान मुलांना मुगाची डाळ घातली पाहिजे. तुरी डाळीचं वरण जर करायचं असलं तर त्यात आमसूल घातलंच पाहिजे. आमसुलाशिवाय तुरीची डाळ घ्यायची नाही. तर ह्याने 2 तऱ्हेचे प्रकार होतात. म्हणजे याला एक गरम पित्त म्हणतात किंवा एक थंड पित्त, असे 2 तऱ्हेचे प्रकार असतात. समजा जर गरम पित्त झालं तर काय प्रकार होतात? माणसाला उलट्या होतात, पित्तवर येतं नेहमी, अंग कृश होत जातं, अंगाला अन्न लागत नाही, भूक लागत नाही, चक्कर येते सकाळी, आणखीन सारखं डोकं भणभण होत राहतं. हे लक्षण आहे गरम पित्ताचं. तर गरम पित्ताला इलाज काय? गरमीला गरमी मारते म्हणतात, तेव्हा उन्हाळ्यात असा इलाज होऊ नाही शकत, पण हिवाळ्यात फार चांगला इलाज होतो. म्हणजे सुंठ आणि साखर सकाळी लगेच कुटून, त्याच वेळेला नुसती अशी सुंठ थोडी ठेचून घ्यायची, इतकी की आपण दाताने खाऊ शकू, ती साखरेत घालून ती घ्यायची. साखर हे लिव्हरचं अन्न आहे, पण नुसती साखर, तळलेल्या वस्तू साखर किंवा मिठाई साखर नाही. ती साखर सुद्धा शुगर केनची साखर जी असते, स्वच्छ केलेली वस्त्रगाळ, त्याहीपेक्षा खडी साखर भेटते. पण उष्णतेमध्ये जेव्हा उष्णता असते तेव्हा लिव्हरला फार चांगलं म्हणजे आमसूल आहे. आमसूल आणि लिंबू हे फार चांगलं. आणि त्या आमसुलामध्ये आमसूल भिजवून ठेवायचं, त्याच्यामध्ये साखर घालायची आणि मग ते घेत राहायचं सारखं. फार त्याचं चांगलं होत आहे. पण त्याला फोडणी टाकायची नाही. पण आमसुलाच्या पाण्याला फोडणी नाही टाकायची. कोकम ज्याला आपण म्हणतो, कोकम, आमसूल किंवा कोकम, कोकम सरबत नको, घरीच करा. सरबत म्हणजे घरी, कोकम सरबत जे आपण घरी करतो ते, पण जे बाजारात कोकम, मृत कोकम वगैरे ते नको. बरं, म्हणजे आपल्याला सगळं मिळतं तर कशाला घ्यायचं बाजारात. बरं, दुसरं असं की ह्याची अतिशयता झाली म्हणजे कावीळ होते. आता कावेळीचा अगदी साधा इलाज मी सांगते, अगदी साधा 2 पैशाचा हिशोब. मुळ्याची पानं घ्यायची. मुळा आपला साधा खातो तो, म्हणजे जे बहुतेक आपण माणसं खातोच नाही म्हणा, खाल्ला पाहिजे. जे चांगलं ते जनावराला घालतो. मुळा अगदी सर्रास खाल्ला पाहिजे. जर गॅस होत असला तर नाही. ज्या माणसाला गॅस होत नाही त्याने खूप मुळा खाल्ला पाहिजे. एकाला एक तोड असते. ज्याला गॅस होतो त्याला पित्त होणार नाही, ज्याला पित्त होईल त्याला गॅस होईल, म्हणजे बॅलन्सिंग आहे सगळं. तर त्यांनी मुळा खायचा. पण मुळ्याची जी पानं असतात अगदी कोवळी पानं, ती उकळून घ्यायची. उकळून घ्यायची. त्याचं जे पाणी आहे त्याच्यामध्ये खडी साखर घालायची आणि कोणतंही दुसरं पाणी प्यायचं नाही, तेच प्यायचं. त्याचं सूप करून घ्यायचं, तेच प्यायचं, दुसरं काही नाही. त्याच्यात फक्त खडी साखर, मीठ नको. ते पाणी घ्यायचं. 2 पैशाचं औषध आहे, 3 दिवस घ्या. दुसरं एक सहयोगी करू शकतात ते औषध, म्हणजे व्हायब्रेट करून घ्यायचं. अर्थात पाहिजे व्हायब्रेशन. म्हणजे जय श्री माता जी. अब ये लीवर के लिए जो आइस ट्रीटमेंट, आइस पैक रखने के लिए बोला है, उसके बारे में हम अभी थोड़ा सा जानकारी लेंगे और फिर डाइट के बारे में. So the liver sustains the attention, and for you to be best Sahajogi is to put your eyes down. जय श्री माता जी. ये आपके स्क्रीन पे जो फोटो दिख रहा है ये है आइस पैक ट्रीटमेंट.
जो आइस पैक होता है, जिनके पास आइस पैक नहीं होगा वो 2-3 बर्फ एक थैली में, प्लास्टिक के थैली में बांध के आपके लीवर पे 2 से 5 मिनट तक उसकी सेकाई कर सकते हैं, ठंडी सेकाई। तो उसके कारण पूरे शरीर में, शरीर का हीट जो लीवर में जम जाता है, वो लीवर हीट ठंडी होनी शुरू हो जाती है और उसके कारण हमारा चित्त भी शांत होता है। ये करते वक्त तुरंत खाना खाने के बाद ये बिल्कुल नहीं करना है। खाने के पहले 1 घंटे पहले 3 से 5 मिनट तक आप लीवर को बर्फ से शेक कर सकते हैं और ठंडा कर सकते हैं। अभी आपके सामने जो चार्ट है ये है लीवर डाइट का चार्ट। तो अभी लीवर को नॉर्मल रखने के लिए, चित्त को स्थिर रखने के लिए क्या क्या खाना है वो इसमें इंग्लिश में लिखा है और उसके बारे में भी हम हिंदी में अभी देखेंगे, और क्या नहीं खाना है वो भी लिखा है। चित्त पे ध्यान देना यही हमारी तपश्चर्या है, यह अमृतवाणी में माँ ने बताया है। हमको चित्त को कमाने के लिए बोला है। और दूसरा एक उदाहरण माँ ने दिया है, जैसे कि हम घोड़े पे बैठते हैं तो हम घोड़े को कहते हैं कहाँ लेके जाना है, घोड़ा हमको कहीं लेके नहीं जाता है। वैसा हमारा चित्त होना चाहिए, हम जहाँ चाहिए वहाँ हमारा चित्त हम ले जा सकते हैं। चित्त ने हमको नहीं लेके जाना है। ये उदाहरण माँ ने इसमें बताया है। तो अभी हम लीवर डाइट के कुछ फोटो देखते हैं, क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अभी क्या क्या खाना है लीवर के लिए, क्या अच्छे पदार्थ है वो हम देखेंगे। पहला पदार्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हम श्री माता जी को चना दिखाते हैं नैवेद्य में, प्रसाद में। इसके बारे में मराठी अमृतवाणी में माँ ने बोला है कि हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो टॉक्सिन्स चना निकाल देता है। जो भी विषाक्तता है हमारे शरीर में वो भी निकाल देता है। इसीलिए चना, वाइब्रेटेड चना खाना जरूरी है। नेक्स्ट, मीठे के बारे में शुगर बहुत खाने के लिए माँ ने बोला है, लेकिन नेचुरल शुगर बोला है, चॉकलेट या कैडबरी की शुगर नहीं बोली है। सिर्फ लीवर वालों के लिए शुगर खाना मना है। लीवर इन द सेंस जो डायबिटीज़ वाले हैं उन्होंने सिर्फ खानी नहीं है, बाकी सारे लीवर के सहयोगी जिनको लीवर की गर्मी है वो खा सकते हैं। उसमें सबसे पहले है ब्लैक ग्रेप्स, काले अंगूर, केन शुगर यानी मिश्री, खड़ी शक्कर जिसको बोलते हैं। तीसरा है गुड़, लेकिन ये नेचुरल होना चाहिए, केमिकल वाला नहीं चाहिए। इसीलिए गर्मी में भी हम गुड़ पानी देते हैं। गन्ने के जूस के बारे में माँ ने अभी जिक्र किया है। गुलकंद के बारे में जो गुलाब की पंखुड़ी से बनता है वो भी बोला है, और काला मनुका। ये सारे जो मीठा, नेचुरल मीठापन रहता है वो और गर्मी एक साथ मिलकर फिर शक्ति तैयार होती, एनर्जी तैयार होती। लीवर इसको कन्वर्ट करता है और एनर्जी में रूपांतरित हो जाता है। नेक्स्ट, आप जो कुछ फल और सब्जियां खाएंगे वो फ्रेश होने चाहिए। नेचुरल चीज़ हमेशा लीवर के लिए अच्छी रहती है। सिर्फ जिनको ज़्यादा एसिडिटी और लीवर है वो सिट्रस फूड नहीं खाएंगे, जैसे कि संतरा, मौसम्बी या फिर नींबू या फिर पाइनएप्पल यानी अनानास। लेकिन ये चारों पदार्थ जिनको लीवर का प्रॉब्लम नहीं है वो इस समय ज़रूर खा सकते हैं, विटामिन सी के लिए और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, आप सबको सब्जा का भी पता है, सब्जा सीड्स, उसको थोड़ा भिगो के उसका पानी ज़रूर पिए शरबत में डाल के। कोकम यानी अमसुल का शरबत
या फिर उसको भिगो के उसका जो पानी है वाइब्रेट करके पीने के लिए अभी अमृतवाणी में माँ ने जिक्र किया है। खस का पानी ये भी बहुत ठंडा रहता है और धनिया का पानी भी गर्मी को निकाल देता है। और सबसे बेस्ट है वाइब्रेटेड वाटर। परम पूज्य श्री माता जी के सामने परम चैतन्य से युक्त जो पानी है वो खाली पेट आप पियोगे तो डायरेक्ट वो पेट में जाने के बाद लीवर में जाता है और लीवर से प्रक्रिया होती है कौन से भी खाने की पदार्थ को परिवर्तित करने की। तो इसीलिए वाइब्रेटेड पानी का असर लीवर पे और लीवर से डायरेक्ट चित्त पे ज़रूर होता है। नेक्स्ट, जो हमारी मूली होती है जिसको हम रेडिश बोलते हैं, उसके पत्तों को उबाल के उसमें थोड़ी खड़ी शक्कर डाल के श्री माता जी को दिखा के ये पीने के लिए ज़रूर बोला है। जितने भी बच्चे चंचल हैं वो शांत हो जाते हैं और पीलिया का भी ये बहुत अच्छा उपाय है। आंवला का मुरब्बा या आंवला, मूंग दाल ये भी बहुत अच्छी बताई है। बहुत ही गर्मी की और लीवर की शिकायत हो तो हिमालय आयुर्वेदिक कंपनी का ल्यू 52 की 2 गोली सुबह शाम आप 1 महीना ले सकते हैं। दही, जिसको फॉरेनर में योगर्ट भी बोलते हैं, ये आप दही लीवर के लिए अच्छा है। छाछ या मीठी लस्सी जो फ्रेश हो, ज़्यादा पुरानी नहीं हो, वो भी लीवर के लिए अच्छी बताई है। नेक्स्ट, ये बंगाली पदार्थ जो रसगुल्ला है ये भी लीवर के लिए अच्छा है। यहाँ पे अदरक और शक्कर ये भी बोला है, लेकिन ये सिर्फ ठंडी में लेने के लिए बोला है, गर्मी में इसको नहीं लेना है। कड़वी चीज़ जो होती है जैसे करेला, कड़ू नीम, ये खाया नहीं जाता है। ये भी बहुत अच्छा ब्लड प्यूरिफायर, खून को साफ करता है, लीवर की हीट भी कम करता है, तो बीच बीच में इसको भी खाया करें। सफ़ेद चावल ये भी अच्छा है और चाय की जगह हर्बल टी को प्रेफर किया है। और कार्डिमम इसको भी खाने के लिए माँ ने बोला है, जो ठंडा होता है, छिलके नहीं खाने, अंदर का खाना है। नेक्स्ट, अभी कौन से पदार्थ लीवर के लिए हानिकारक है, घातक है, वो हम देखेंगे। ज़्यादा प्रमाण में चाय, कॉफ़ी या चॉकलेट ये लीवर के लिए अच्छे नहीं है। ज़्यादा गर्मी हो, लीवर की हीट ज़्यादा हो तो ज़रूर इन पदार्थों को कम करिए। ज़्यादा स्पाइसी फूड, सिंगदाना, तला हुआ, बासी खाना, अचार, केमिकल का साबुदाना ये नहीं खाना है। इसके कारण लीवर की हीट और गर्मी बहुत बढ़ती है। ज़्यादा प्रमाण में पेस्ट्री प्रोडक्ट्स, अननेचुरल आइसक्रीम्स, केक, हेवी फूड में जंक फूड, चीज़, पनीर, केमिकल फूड में जो सॉस होते हैं जिसमें अलग अलग फ्लेवर रहते हैं, ये भी कम करने के लिए बोला है। और बेकरी प्रोडक्ट्स को भी कम करने के लिए बोला है। चाइनीज़ फूड में जो अजीनोमोटो डाला जाता है वो बहुत घातक होता है लीवर के लिए। और साथ साथ में कोल्ड ड्रिंक्स, जिसको एरेटेड प्रोडक्ट्स बोलते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और इसके कारण भी लीवर में गर्मी या लीवर पे प्रेशर आ जाता है और व्याधियों को निमंत्रण होता है। नेक्स्ट, मशरूम, क्रीम ये भी नहीं खाने के लिए बोला है। और ज़्यादा गर्मी हो और लीवर हीट भी हो, समर सीज़न हो, तो ज़रूर नॉनवेज को भी अवॉइड करने के लिए बोला है, क्योंकि सी फूड, नॉनवेज, अंडे, इसमें फॉस्फोरस ज़्यादा होता है और फॉस्फोरस के कारण आदमी में ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसीलिए इस गर्मी में इसको कम करना है, संतुलन में रखना ज़रूरी है। तूर दाल के बारे में भी बोला है, वो भी नहीं खानी है, और खानी है तो उसमें आपको कोकम डाल के खाना पड़ेगा। और साथ में जो फास्ट फूड होता है, जंक फूड होता है, ये लीवर को बहुत काम पड़ता है। जितना आप लीवर को काम कम दोगे उतना आपका चित्त आपके साथ रहेगा। साथ में जिनको ज़्यादा एसिडिटी और लीवर प्रॉब्लम है वो कुछ दिन के लिए लेमन, ऑरेंज, पाइनएप्पल, ये जो सिट्रस फूड है वो ना खाएं। तो ये हुआ आज का
सेकंड सेशन लीवर डाइट, लीवर और स्वादिष्ठान और उसका चित्त का संबंध, ये सारा ज्ञान परम पूज्य श्री माता जी ने हमें उपलब्ध करके दिया, इसलिए हम श्री माता जी के आभारी हैं। अभी 1 मिनट का लास्ट वीडियो रह गया है। ये जो हमारी श्री माता जी है, हमारी गुरु है, गुरु के बारे में जो हमें नम्रता होनी चाहिए, गुरु का नाम लेते हैं वो कैसे लेना चाहिए, वो हम इस अमृतवाणी में देखेंगे। गुरु के बारे में जो श्री माता जी ने बताया है कि दोनों हाथ, दोनों कानों को पकड़ के श्री माता जी का जो सबसे बड़ा नाम है यानी निर्मला, वो लेना जरूरी है। उसके लिए कान पकड़ना जरूरी है। वो खुद माँ बता रही है, वो हम वीडियो एक बार देख लेते हैं। Now the name of your mother. Is very powerful. You know that is the most powerful name than all other names, the most powerful mantra. But you must know how to take it. With that complete dedication you have to take that name. Not like any other name. You know that in India when they take the name of Guru, they fold their ears for taking the name of the Guru. Means while taking the name, if I am making any mistakes, please forgive me. It means that. This mantra is a very powerful mantra. Only what you need is the dedication, the dynamite of dedication. जय श्री माता जी। अब हम दोनों कान पकड़ते हैं, थोड़ा सा नम्रता पूर्वक आगे झुक के हमारे गुरु का जो नाम है श्री निर्मला, तो ओम श्री निर्मला देवे नमो नमः 3 बार हम सब दोहराते हैं, आदर युक्त, नम्रता युक्त, कान पकड़ के। ओम श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम श्री निर्मला देवे नमो नमः। जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आपने ये वर्कशॉप में आज हमें लीवर के बारे में और लीवर के खान पान के बारे में ज्ञान दिया, अनुभूति दी, संतुलन दिया। इसलिए श्री माँ, हम आपके ऋणी है, आभारी है। ये सब करते वक्त जाने अनजाने में हमारे से कोई गलती। जय श्री माता जी।